السلام علیکم دوستو۔ سائر جنات نگری کے دو جنوں سائر اور کاراکا کی پر اسرار کہانی۔ ایک خیر کا پرتو تھا اور دوسرا شر کا مجسمہ۔ دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ مجھے حیرت نہیں تھی کیونکہ مجھے رام داس سے یہی توقع تھی۔ جب پجاری رام داس نے میرے بارے میں معلوم کر لیا ہے کہ میں اس قبیلے میں سردار مٹوشا کی قید میں ہوں تو لازماً اس نے سورامی کے بارے میں بھی معلوم کر لیا ہوگا۔ سورامی، سردار مٹوشا نے انتہائی غصیلے لہجے میں سورامی سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ ڈر گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ کیا پجاری رام داس صحیح کہہ رہا ہے؟ میری بات سنو سردار مٹوشا، وہ گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میری بات کا جواب دو، وہ گرجا، اور اس کی گرج اتنی زوردار تھی کہ سورامی خوف زدہ ہو گئی، بلکہ وہاں جتنے بھی قبائلی موجود تھے سب ہی نہ صرف ڈر گئے بلکہ آہستہ آہستہ وہاں سے کھسک گئے کہ کہیں سردار مٹوشا سورامی کا غصہ ان پر نہ نکال دے، کیونکہ اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھا۔ اب میدان میں سردار مٹوشا، میں، سورامی اور پجاری رام داس موجود تھے۔ پجاری رام داس طنزیہ نظروں سے سورامی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ بولو نا، خاموش کیوں ہو، جبکہ میں پجاری رام داس پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارا منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا تھا۔ میری بات تو سنو سردار مٹوشا، سورامی نے ایک بار پھر کہنا چاہا، لیکن سردار مٹوشا نے آگے بڑھ کر اس کے سر کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور ایک زوردار جھٹکا دیا تو سورامی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ بال سردار مٹوشا کی گرفت سے چھڑانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ اگر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، سردار مٹوشا گرایا۔ میرے بال تو چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سورامی نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بدستور بال سردار مٹوشا کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ظالم اس کے بال نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں آگے بڑھ کر سردار مٹوشا کو مزہ چکھا دوں، لیکن پھر رک گیا کیونکہ پجاری رام داس وہیں تھا اور ابھی تک اسے میری موجودگی کی خبر نہیں ہو سکی تھی، ورنہ وہ سب سے پہلے مجھے ہی اپنی کالی طاقتوں کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کرتا۔ پجاری رام داس کو مارنا میرے لیے ضروری تھا، ورنہ وہ بدبخت کسی جونگ کی طرح میرے پیچھے پڑا رہتا۔ چنانچہ میں نے قرب و جوار میں نظریں دوڑائیں تو مجھے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کے قریب موٹی سی لکڑیاں پڑی دکھائی دیں، شاید وہ آگ جلانے کے لیے کٹھی کی گئی تھیں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھ کر ایک موٹی سی لکڑی اٹھا لی اور پجاری رام داس کی طرف بڑھا۔ سردار مٹوشا نے بدستور سورامی کے بال مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے اور اس پر غصے ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے سورامی کی آواز سنائی دی تو میں ٹھٹک کر رک گیا۔ ہاں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں سردار مٹوشا، بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے سامنے بولو، میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے کیسے شادی نہیں کرتی، سردار مٹوشا بھی چلایا، اور پھر اس نے پجاری رام داس سے کہا، تم یہیں رکو،
मैं उसे झोंपड़ी में बंद करके आता हूँ और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे शिकार के पास ले चलूँगा, तुम उसे यहीं से ले जाना। ठीक है, पुजारी रामदास ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सरदार मटोशा सुरामी के बाल पकड़े उसे तकरीबन घसीटता हुआ झोंपड़ी की तरफ ले जाने लगा। मेरे दिल में सरदार मटोशा के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। वो इतना जालिम होगा मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने पुजारी रामदास की तरफ देखा तो वो मक्काराना नज़रों से मुस्कुराते हुए सरदार मटोशा और सुरामी की तरफ मतवज्जा था। उसे मारने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन मौका था। चुनाचा मैं गिरबा पा चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। मैं जैसे ही पुजारी रामदास के करीब पहुंचा तो अचानक स्याह रंग की एक चील करीह अमीज आवाज़ में चीखती हुई इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ी। उसने अपने पंजे मेरे चेहरे पर मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बिजली की सी तेज़ी से झुकाई दे गया और चीख की आवाज़ सुनकर पुजारी रामदास भी ठठक गया। ओहो, मैं यकीनन ख़तरे में हूँ, पुजारी रामदास बड़बड़ाया। स्याह चील चंद गज तक जाने के बाद बिजली की सी तेज़ी से मुड़ी और दोबारा करीह अमीज आवाज़ में चीखती हुई मेरी तरफ बढ़ी। साथ ही ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, आका खतरा, आका खतरा। मैं समझ गया कि वह पुजारी रामदास को खतरे से आगाह कर रही है और उसे इशारा कर रही है कि वह वहाँ से फ़ौरन गायब हो जाए, लेकिन मैं उसे गायब नहीं होने देना चाहता था। और फिर इससे पहले कि पुजारी रामदास वहाँ से गायब होता, मैंने तेज़ी से लकड़ी उसके सर पर मार दी। लकड़ी उसके सर पर पड़ी तो उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। ऐन उसी लम्हे स्याह चील ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैं चूंकि होशियार हो गया था, इसलिए जैसे ही स्याह चील मुझ पर हमला आवर हुई तो मैंने लकड़ी घुमा दी। लकड़ी उसके वजूद से टकराई और वो करीह अमीज आवाज़ में चीखती हुई एक झमाके से गायब हो गई। पुजारी रामदास वहीं खड़ा था। उसने अपना सर थामा हुआ था और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। शायद वो कोई मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन मैंने उसे मौका ना दिया और एक बार फिर उसके सर पर लकड़ी से वार कर दिया। वो दिल खराश चीख मारता हुआ ज़मीन पर मुंह के बल गिरा और माही बेआब की मानद तड़पने लगा। चूंकि सब कबायली वहां से जा चुके थे, इसलिए हम दोनों के अलावा मैदान में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं तो गैबी हालत में था, लेकिन पुजारी दिखाई दे रहा था। उसके बावजूद किसी ने झोंपड़ी से बाहर निकलकर देखने की जहमत ना की। बस फिर क्या था, मैंने पुजारी रामदास पर लकड़ी से वार पर वार करने शुरू कर दिए और तब तक दम ना लिया जब तक पुजारी रामदास की रूह उसके जिस्म से निकल ना गई और उसकी लाश खून में लथपथ हो चुकी थी। उसके मरते ही मैंने सुकून भरे अंदाज में खसो कम जहां पाक कहा और नफरत भरी नज़रों से उसकी लाश को देखा। आख थू, मैंने नफरत से पुजारी रामदास की लाश पर थूक दिया और फिर मैंने उसके चोगे की तलाशी ली तो मुझे मेरा तावीज़ मिल गया, जिसे मैंने फ़ौरन ही अपने गले में पहन लिया। दफतन मुझे झोंपड़ी में से सुरामी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी तो मैंने चौंक कर झोंपड़ी की तरफ देखा। उसका दरवाज़ा बंद था और शायद सरदार मटोशा सुरामी पर तशद्दुद कर रहा था। मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ। अगले ही लम्हे मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मैंने ज़ोर से लात मारी तो घास फूस से बना दरवाज़ा अंदर जा गिरा और मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल ये था, सरदार मटोशा के हाथ में एक चाबुक था और सुरामी झोंपड़ी के कोने में
फर्श पर दुबकी खौफ भरी नज़रों से सरदार मटोशा को देख रही थी और उसके बाजू पर चाबुक का निशान था जो यकीनन सरदार मटोशा ने उसे मारा था। ज़मीन पर एक चटाई बिछी हुई थी और कोने में बिस्तर लगा हुआ था। वो खासी बड़ी झोंपड़ी थी। सरदार मटोशा हैरत भरी नज़रों से चौंक कर टूटे हुए दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो बोला, कौन है यहाँ? किसने दरवाज़ा तोड़ा है? मैंने तोड़ा है, मैंने जवाबन कहा और अंगूठी की मदद से ज़ाहरी हालत में आ गया। मुझे देखते ही सरदार मटोशा के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, जबकि सोरामी का चेहरा खुशी से गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। तुम वो अटकते हुए बोला और उसकी आंखें फैल गईं और उनमें गैर यकीनी समा गई थी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अचानक वहां आ सकता हूं। बेगैरत इंसान, मर्द होकर औरत पर तशद्दुद करते हो, मैंने शाम की मानद फुंकारते हुए कहा। हो, इसका मतलब है कि पुजारी रामदास ठीक कहता था कि तुम एक जिनजाद हो। सरदार मटोशा ने सरसराती आवाज में कहा। हाँ, मैं जिनजाद हूं, मैंने एतराफ़ किया। फिर तो मैं तुम्हें अपने कब्जे में करके तुमसे बहुत से काम ले सकता हूं। सरदार मटोशा ने अचानक शातराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी अपना ये शौक पूरा करके देख लो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। पुजारी रामदास ने भी मुझे अपना दास बनाना चाहा था, लेकिन मैंने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब तुम भी नहीं बचोगे। आखिर में मैंने इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो सरदार मटोशा की आंखों में खून उतर आया। क्या कह रहे हो? क्या तुमने वाकई पुजारी रामदास को मार दिया है? वो होंठ भींचते हुए बोला। अपनी जादुई ताकतों से मालूम कर सकते हो। ओहो, फिर तो तुम बहुत खतरनाक जिनजाद हो, सरदार मटोशा सरसराती आवाज में बोला। तुम्हें हर सूरत काबू करना होगा। तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। जादू मंत्र के जरिए अगर ऐसा कर सकते हो तो कर लो, मैंने उसे चैलेंज करते हुए कहा। सोरामी भी खौफ भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। शायद उसे खदशा था कि कहीं सरदार मटोशा सच में अपने जादू मंत्र से मुझे अपना गुलाम बना ले। तभी वो चिल्लाई, शायर, ये क्या कर रहे हो? नहीं, इसे रोको, वरना ये तुम्हें अपना दास बना लेगा। मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि ये अपना शौक पूरा कर ले, बाद में ये ना कहे कि मैंने इसे मौका नहीं दिया। उल्लू की पट्टी, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। पहले मैं उसे अपना दास बना लूं, फिर मैं तुमसे भी निमटता हूं। सरदार मटोशा ने इस बार फुंकारते हुए लहजे में कहा तो सोरामी खौफ से सिमट गई, ताहम उसने कुछ कहा नहीं। मेरी नज़रें सरदार मटोशा पर जमी हुई थी। अगले ही लम्हे वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। मैं समझ गया कि वो मुझे काबू करने की गर्ज से कोई जादू पढ़ रहा है, लेकिन मैं मुतमिन था क्योंकि मेरे गले में अब जिन बाबा का तावीज़ था। सरदार मटोशा ने कुछ पढ़कर यक लख्त मेरी तरफ फूंक मार दी और साथ ही बड़बड़ाया, ऐ मेरे देवता, इस जिनजात को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। कई लम्हात गुजर गए, लेकिन सरदार मटोशा के जादू का मुझ पर असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने 2 बार मज़ीद जादुई मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंके, लेकिन जब वो कामयाब ना हुआ तो उसके चेहरे पर खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात उभर आए। दफतन झोंपड़ी में एक करीह अमीज आवाज़ गूंजी, सरदार मटोशा, जल्दी से भाग जा, ये जिनजात तेरे कब्जे में आने वाला नहीं। इसके सर पर रोशनी की ताकतें हैं, जल्दी कर, भाग जा। और ये आवाज़ सुनते ही सरदार मटोशा बेइख्तियार उछल पड़ा।
इस बार वो सरासीमा हो गया। शायद ऐसा उसकी तवक्का के खिलाफ था। मैं जानता था कि शैतान के पैरोकारों को जब नाकामी का संदेशा मिल जाता है तो वह हर मुमकिन खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। यकीनन सरदार मटोशा भी करेगा। इसलिए मैं उसकी तरफ से बेखबर नहीं था और ना ही उसे फरार होने देना चाहता था। मैं चौकन्ना था और मेरी नज़रें उसी पर गड़ी हुई थीं। ओहो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे अम्मान दो, सरदार मटोशा ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। कबल इसके कि वो अपनी काली शक्तियों की बदौलत वहाँ से फरार होता, मैंने बरकी सूरत से आगे बढ़कर अंगूठी उसके दिल के ऐन मकाम पर रख दी और उसके मुंह से करीह अमीज कराह निकली और वो चाबुक फेंक कर अपने दिल पर हाथ रखता घुटनों के बल चटाई पर बैठता चला गया। अजियत से उसका चेहरा मसक होता जा रहा था। आंखें बाहर को उबल रही थीं और जिस्म पर कपकपाहट तारी थी। मुंह से भी कराहें निकल रही थीं। लम्हा भर के बाद वो एक झटके से पुश्त के बल चटाई पर गिरा और माही बेआब की मानद तड़प कर साकत पड़ता चला गया। उसके हाथ पैर ढीले हो गए थे और उसकी आंखें खुली हुई थीं जिनमें गैर यकीनी सबत थी। सुरामी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और गैर यकीनी से सरदार मटोशा की लाश को देखने लगी। वो दहशत ज़दा नज़रों से सरदार मटोशा को देख रही थी।